My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing the concepts of trigonometry and variety of questions that can appear in the examination. Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT or join the channel Mathological or WhatsApp channel for that matter. So, the very important part in trigonometry is a right angle triangle. So if there is a right angle triangle, then let us say this angle is theta. So side opposite to that of angle theta is known as perpendicular, or we can also call that opposite. And the largest side is opposite to angle 90 degrees, because smaller the angle, smaller will be the side opposite to it, larger the angle, larger will be side. तो largest angle होता है right angle triangle में 90 degree का angle, so largest side is hypotenuse. And the base on which angle theta stands, so that is known as base. Okay. And since sum of angles is 180 degrees, एक एंगल तो 90 हमारा हो ही गया है, वन एंगल इज थीटा, तो थर्ड एंगल इज 90 माइनस थीटा. ओके, क्या तक बात समझ में आती है? नाउ साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं. साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दैट इज इक्वल टू, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो लेट अस से द साइड्स आर ए बी सी. So sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, which is equal to AB upon AC. And since AC is the highest side, so AB by AC, this will be less than 1. Cos of theta is equal to base upon hypotenuse, which will be BC upon AC. And again, since AC is the largest side, so BC upon AC will also be equal to less than 1. ठीक है, क्या ये clear है? Now tan theta is equal to sin theta upon cos theta, or we can say this is equal to perpendicular upon base, which will be AB upon BC. Are these ratios clear? ठीक है. Additionally, if we check about sin of 90 minus theta, तो sin 90 minus theta क्या हो जाएगा? Perpendicular upon base, but इस टाइम perpendicular क्या होगा? Perpendicular will be the side opposite to 90 minus theta, which is equal to BC. ठीक है, so this will be perpendicular upon height, but perpendicular upon base बोला था क्या? Perpendicular upon height होगा, और perpendicular हमारा क्या होगा? That is BC upon hypotenuse, और hypotenuse है हमारा AC, तो BC by AC, which is cos theta. So sin 90 minus theta is also equal to cos theta, because sin and cos are complementary. Cos is complementary of sin. So sin 90 minus theta is cos theta, and similarly cos of 90 minus theta will be equal to sin theta. ओके, क्या यहां तक समझ में आता है? ठीक है. So if A and B are, let us say, acute angles, and A plus B is equal to 90 degrees, basically they are complementary angles as well. 90 degrees हमारा है, यानी कि they are complementary angles. So sin of A will be equal to cos of 90 minus A, because sin and cos are complementary. ठीक है, so A और 90 minus A का सम कितना आएगा? 90 आएगा. That because these are complementary ratios. Sin A is equal to cos of 90 minus A, और 90 minus A क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. So this is equal to cos of B, or we can say cos of A will be equal to sin of 90 minus A. So that will be equal to sin of B. Similarly, tan of A
विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ, क्योंकि tan एंड कॉट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan, तो tan ऑफ a विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस a, विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ b. ओके, ठीक है. Additionally, as we have already seen that sin theta will always be between -1 and 1. Minimum value will be -1, maximum value will be 1. Similarly, for cos of theta will be between -1 and 1. Minimum -1 and maximum value will be equal to 1. But अगर first quadrant की बात करें, first quadrant implies that when the theta is between 0 and 90 degrees, so if theta is between 0 and 90 degrees, in that case, sin theta is between 0 and 1. Minimum 0, maximum 1, and cos theta is also between 0 and 1 because both values are non-negative. Minimum value 0 हो सकता है, maximum value can be equal to 1. Okay. Is this clear? आगे की बात करते हैं. So in some question, let us say if it is given that x is equal to a sin theta plus b cos theta, and question is asking कि what will be maximum value of a? Maximum value of a. So if x is equal to a sin theta plus b cos theta, तो maximum value of this will be equal to 1. ठीक है, maximum value क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल टू x is a sin theta plus b cos theta, तो maximum value will be equal to, अगर हमारा this will be having maximum value equal to square root of a square plus b square, and minimum value will be equal to minus square root of a square plus b square of this expression. For example, if it is given that x is equal to 3 sin theta sin a plus 4 cos a, so in this case maximum value आ जाएगा हमारा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5, और मिनिमम वैल्यू होगा -5. अगर 3 sin a प्लस 4 cos a की जगह ये भी मेंशन्ड है कि लेट अस से y इज इक्वल टू 3 sin a minus 4 cos a, still will say that maximum value will be square root of 3 square plus -4 का होल स्क्वायर. सो मैक्सिमम वैल्यू तब भी हमारा 5 ही होगा और मिनिमम -5 ही होगा. क्या ही क्लियर है? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ लेट अस से सम क्वेश्चन इज सेइंग दैट tan of theta is equal to 3/4. tan of some angle is 3/4. सो हमेशा अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू गिवन है, so you can always make a right angle triangle with that ratio. If tan theta is equal to 3/4, then this is equal to perpendicular upon base, यानी perpendicular value 3 है और base की value 4 है. So if this angle is theta, तो perpendicular will be side opposite to it. This is equal to 4, this is 3, the base is 4, तो hypotenuse क्या हो जाएगा हमारा? पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है ये, तो this is पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला केस 3, 4 and 5. So hypotenuse will be equal to 5, 3, 4, 5 और 5, 12, 13 और 8, 15, 17, 20, 21, 29, 7, 24, 25 एंड सो ऑन. ठीक है, याद है ना ये ट्रिपलेट्स? ठीक है, सो हमारा tan थीटा अगर गिवन है 3/4, तो वहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं. अब यहां से sin थीटा भी आ जाएगा, sin थीटा विल बी 3/5, cos theta will be 4/5 and so on for all the ratios. Okay, now common values of sin and cos: 0, 30, 45, 60 degree, 90 degree. So sin values are 0 degree के लिए वैल्यू आएगा 0, 30 के लिए दिस विल बी 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 एंड 90 के लिए दिस विल बी 1.
और कॉस की वैल्यूज पलट जाएंगी एग्जैक्टली, बिकॉज कॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉस 0 विल बी इक्वल टू 1, √3/2 हो जाएगा कॉस 30, 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। tan विल बी 0, 0/1 साइन बाई कॉस होगा, 1/√3, 1√3 एंड 90 डिग्रीज पे tan इज अनडिफाइंड बिकॉज 1/0 हो जाता है और 1/0 इज अनडिफाइंड। ओके, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, लास्ट प्रॉपर्टी that sin square theta plus cos square theta, this is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta, that is equal to 1. Now if we divide both sides by sin square theta, if we divide both sides by sin square theta, divide by sin square theta, so this becomes sin square theta by sin square theta 1 plus cos square theta upon sin square theta is equal to 1 upon sin square theta, and 1 upon sin theta is cosec theta, and cos by sin, that is cot theta. So 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. And instead we have, if we have divided the original equation by cos square theta, तो इक्वेशन हमारा बन जाता tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Where 1 by cos theta is equal to sec theta. So these are few important properties. ठीक है, और हमें सिर्फ से एक ही प्रॉपर्टी याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल 1, और ये जो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज हमारी इसी प्रॉपर्टी से निकल जाती हैं इफ यू डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए cos b plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b, यही एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो जाएगा तो क्या करेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी बस b की जगह माइनस बी पुट कर दो, तो साइन a cos ऑफ माइनस बी प्लस cos a साइन ऑफ माइनस बी। ओके, एंड साइन ऑफ माइनस बी is equal to minus of sin b, but cos of minus b is equal to cos b. So फॉर्मूला हमारा बन जाएगा sin a cos b minus cos a sin b. ओके, क्या ये क्लियर है? एंड सिमिलरली फॉर्मूला फॉर sin c plus sin d is 2 times sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, और यहां भी वही सेम है, sin c माइनस sin d हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos of c minus d by 2। अब क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देख के समझते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, if p is equal to cos of 20 degrees into cos of 34 degrees into cos of 48 degrees into cos of 62 into cos of 76 till cos of 160, तो p का वैल्यू क्या होगा? अब हमें ना तो cos 34 की वैल्यू पता है, ना 48 की, ना 62 की, ना cos 20 की, हमें किसी भी cos की वैल्यूज तो पता नहीं है, सबका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमसे क्वेश्चन में रिजल्ट पूछा है, तो डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसी वैल्यू आ रहा होगा जिसका वैल्यू हमें पता होगा। नॉट जस्ट दैट, चांसेज आर कि दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, सारी वैल्यूज का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अगर प्रोडक्ट में एक भी वैल्यू हमारी 0 आ गई तो पूरा प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड वी नो cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, बिकॉज अदरवाइज हम ये प्रोडक्ट कैसे पता लगा पाएंगे जब हमें कोई भी और वैल्यू पता ही नहीं है। तो पता होता तो बात अलग थी, बट कोई वैल्यू हमें पता नहीं है और एक हमें सीरीज दे दिया, पूरा प्रोडक्ट दे दिया है, तो डेफिनेटली वन ऑफ दीज वैल्यूज मस्ट बी 0, बट क्या है नहीं है वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos 20 के बाद एंगल आ रहा है 34, फिर आ रहा है 48, तो एंगल्स हमारे एपी बना रहे हैं 62, 76, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 14 ऐड हो रहा है बार बार, सो नेक्स्ट वैल्यू भी cos ऑफ 90 एंड cos ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 0, सो एक वैल्यू 0 आ गया, पूरा प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा, तो p विल बी इक्वल टू 0, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, प्रोडक्ट हमारा 0 आ जाएगा।
क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 90. अब देखो जीरो का वैल्यू तो हमें पता है, साइन 0 का, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, बट हमें साइन 15 का वैल्यू पता नहीं है, साइन 75 का वैल्यू पता नहीं है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब देखो साइन स्क्वायर है और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता है साइन में, स्क्वायर्स में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1. एंड वी ऑल्सो नो कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. ठीक है, सो कैन वी से साइन ऑफ 15 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 15. सो कॉस 75 हो गया, कॉस 75 हो गया, साइन 15 कॉस 75 हो गया, तो साइन स्क्वायर 15 हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 75, और ये साइन स्क्वायर 75 है, तो दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75, दैट विल बी इक्वल टू 1. 1 आ जाएगा रिजल्ट. ठीक है, सिमिलरली अगर हम बाकी जगह पे पेयर बनाना चाहें तो साइन स्क्वायर 0 कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर 90. या तो वैल्यूज ले लो या फिर कॉस का पेयर बना लो, तो कॉस साइन का पेयर यहां भी बन जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. सिमिलरली साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, बस बीच में अकेला रह जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 45, इसका तो पेयर नहीं बनने वाला, तो 3 तो हमारे पेयर बन जाएंगे, सबका वैल्यू आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 3 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 7/2. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 30 यानी कॉस 60, तो हमारे पेयर्स बन जाएंगे 3, साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 90, दैट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज साइन और कॉस का पेयर है. इफेक्टिवली ये क्या हो रहा है हमारा, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 लिख दो इसको, या फिर लिख सकते हो तुम साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, किसी भी तरह से लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा. सिमिलरली साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, और सिमिलरली साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो 3 पेयर्स आ गए और एक बचा हमारा साइन स्क्वायर 45 विच इज इक्वल टू 1/2, तो आंसर आ जाएगा 7/2 ऑप्शन बी. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 54 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एंड 0 इज लेस देन 2 थीटा प्लस 54 प्लस लेस देन 90, यानी कि हमारा एंगल क्या है 2 थीटा प्लस 54, दिस इज एक्यूट एंगल क्योंकि 0 से 90 के बीच में. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा बाई 2. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. सो गिवन क्या है हमें, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 54, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, और क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम ऑफ दीज एंगल्स विल बी 90, यानी 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो यहां से 3 थीटा आ जा रहा है इक्वल टू 36 डिग्रीज एंड थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्रीज आ गया. सो कॉस 5 थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज 12, तो कॉस 5 थीटा हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री. cos 60 degree is equal to 1/2 and sin 30 degree is also 1/2, तो 1/2 plus 1/2 आंसर will be equal to 1. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. Isn't it so? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b is equal to 90 degrees, a plus b is 90 and a is equal to 2b. a plus b is 90, a is equal to 2b, तो एक जगह 2b रिप्लेस कर दो, 2b plus b, 3b is 90 डिग्रीज, सो एंगल a आ गया हमारा, b आ गया 30 और a आ जाएगा 60 डिग्रीज. तो 3 cos स्क्वायर a माइनस 4 साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगा, 3 cos स्क्वायर ऑफ a यानी cos स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ 30 डिग्री. सो cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, बोथ आर इक्वल टू 1/2. ठीक है, so this becomes 3/4 minus 4/8
विच इज 1/2. 3/4 minus 1/2 is equal to 1/4. Answer will be 1/4, option A. Okay. Isn't it so? Clear? Next question. Find the value of sin 75 degrees plus sin 15 degrees. Sin 75 प्लस साइन 15. अब ना तो हमें साइन 75 का वैल्यू पता है, ना साइन 15 का वैल्यू पता है, और यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है कि हम स्ट्रेट अवे कर देते 1. ठीक है, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 तो इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि एक वैल्यू को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं. बट यहाँ पे तो साइन 75 और साइन 15 है, तो क्या जुगाड़ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखो जब भी कभी ऐसी वैल्यूज हमें गिवन हो, सो व्हाट वी कैन डू कि दिस इज साइन सी प्लस साइन डी, and sin c plus sin d is 2 times sin of c plus d by 2, means 75 plus 15 by 2 into cos of 75 minus 15 by 2. एंड वी नो कि 75 प्लस 15 हो जाता है 90, 75 माइनस 15 हो जाता है 60, और फिर हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं उनका हम साइन और कॉस निकाल सकते हैं. तो 2 टाइम्स साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 45 हो जाएगा 1/√2 और कॉस 30 हो जाएगा √3/2. सो दिस बिकम्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3/√2, और भी कैसे √3/2. दिस विल बी द आंसर. ओके, क्या है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन 75 प्लस साइन ऑफ 30 क्या वैल्यू होगा? नाउ दिस टाइम इफ वी ऐड, और अगर हम सेम फॉर्मूला यूज करें, सो वी कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स साइन ऑफ 75 प्लस 30 by 2 इंटू कॉस ऑफ 75 माइनस 30 by 2. बट 75 प्लस 30 हो जाएगा 105/2, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ 52.5 डिग्रीज. क्या इसकी वैल्यू हमें पता है? बिल्कुल नहीं पता है. इंटू कॉस ऑफ 22.5 डिग्रीज, क्या इसकी वैल्यू पता है? इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो हमें इनकी वैल्यूज ही नहीं पता है, तो सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे. क्या कर सकते हैं और कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो साइन 30 का वैल्यू तो हमें पता है, साइन 75 का वैल्यू नहीं पता है. बट क्या साइन 75 डिग्री को हम ऐसे 2 एंगल से ब्रेक कर सकते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता हो? क्या ऐसे ब्रेक किया जा सकता है इसको? तो कैन वी राइट साइन 75 एज साइन ऑफ 45 प्लस 30, और 45 प्लस 30 में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता है. तो साइन ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30, और वी नो साइन ऑफ a प्लस b, दिस इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. So this becomes sin 45 cos 30 plus sin 30 cos 45. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं स्ट्रेट अवे. सो sin 45 यानी 1/√2, cos 30 यानी √3/2, प्लस sin 30 यानी कि 1/2 इंटू cos 45 विच इज 1/√2 प्लस sin 30 विच इज 1/2. सो डिनोमिनेटर आ जाएगा 2√2, डिनोमिनेटर में आएगी वैल्यू √3 + 1, √3 + 1 by 2√2 plus 1/2, which will become √2 by 2√2. ठीक है, so this becomes √3 plus √2 plus 1 by 2√2. ये वैल्यू आ जाएगा हमारा sin 75 plus sin 30 के लिए. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ cos of a is equal to 5/13, then find the value of tan square a plus sec square a. अब ये कोई पॉपुलर वैल्यू तो है नहीं. cos of a is equal to 5/13, but we know cos of theta is equal to base by hypotenuse. तो बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज हमें गिवन है 5 और 13, तो क्या है सारे रेशियो निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के. सो इफ दिस एंगल इज a, cos of a is base upon hypotenuse, बेस हमारा 5 आ गया,
हाइपोटेन्यूज आ गया 13, तो परपेंडिकुलर विल बी 12, 5, 12, 13 का पाइथागोरस टेबलेट बन रहा है। और यहाँ से फिर हम tan की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, sec की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। sec क्या होगा, sec ऑफ a विल बी cos ऑफ a, अगर 5/13 है तो sec a विल बी इक्वल टू 13/5, 1/cos a 13/5, और tan a विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so 12/5, tan a is 12/5, sec a is 13/5, तो tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, so 12/5 का होल स्क्वायर प्लस 13/5 का होल स्क्वायर, बेस में आ गया 25, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, तो 170 प्लस 143, 313/25, दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। क्या है, क्लियर? ओके, इज दिस क्लियर? अगर जस्ट इन केस इस क्वेश्चन में होता tan स्क्वायर है माइनस sec स्क्वायर है, तो क्या वैल्यूज निकालने की जरूरत थी? तब तो होता है, ये स्ट्रेट अवे होता है माइनस वन। क्या अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी देखा था हमने कि sec स्क्वायर है इज इक्वल टू tan स्क्वायर है प्लस 1, तो वहां से तो स्ट्रेट अवे में वैल्यू मिल जाता है tan स्क्वायर है माइनस sec स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू -1, या फिर sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin a प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4a। sin a प्लस sin स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4a का वैल्यू क्या होगा? यानी कि हमें cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल पाएंगे। और हमें वैल्यू क्या गिवन है, sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ओके, सो cos की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी नो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर a कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। सो अगर हम sin स्क्वायर a को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं, तो sin ऑफ a दिस इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। देखिए cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin a, और इस एक्सप्रेशन में क्या है, cos स्क्वायर a, वी हैव cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4a, यानी cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। पुट कर दो sin a cos स्क्वायर a की जगह, तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin a, तो sin a प्लस sin a का होल स्क्वायर, एंड sin a होल स्क्वायर इज sin स्क्वायर a, तो sin a प्लस sin स्क्वायर a, एंड sin a प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 sin a minus 4 cos a is equal to 0 and a is an acute angle, then find the value of 5 sin a minus 2 cos a upon 5 sin a plus 4 cos a। तो if 5 sin a minus 4 cos a is equal to 0, तो 5 sin a this is equal to 4 cos a, so sin a by cos a becomes equal to 4/5। अब या तो तुम इसको tan a लिख सकते हो और फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और हमें उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पता है 4 और 5, तो वहां से हम सारे के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। बट क्या इस क्वेश्चन में वाकई में जरूरत है उसकी? क्या इस क्वेश्चन में वाकई में जरूरत है? द क्वेश्चन इज आस्किंग वैल्यू ऑफ 5 sin a minus 2 cos a अपॉन 5 sin a plus 4 cos a। सो इफ वी डिवाइड बाई cos a ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों को cos a से डिवाइड कर दें, तो वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, इफ वी डिवाइड बाई cos a इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ठीक है, तो दोनों को क्योंकि cos a से डिवाइड कर रहे हैं तो एज सच कैंसिल आउट हो जाएगा cos a, तो डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि sin a बाई cos a की वैल्यू 4/5 है, ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 ऑफ sin a अपॉन cos a माइनस 2 बचेगा क्योंकि cos a बाई cos a 1 हो जाएगा, लिख देते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए, cos a बाई cos a 1 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा वैल्यू 5 ऑफ sin a अपॉन cos a प्लस 4 टाइम्स cos a बाई cos a, एंड दिस इज इक्वल टू sin a बाई cos a 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2 प्लस 4,
सो दिस बिकम्स 4 माइनस 2 विच इज 2 अपॉन 4 प्लस 4 8, 2 बाई 8 इज इक्वल टू 1/4. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1/4. सेकेंड और थोड़ा सा लंबा मेथड ये हो सकता था कि हम इंस्टेड, क्योंकि tan a हमें पता है विच इज 4/5, एंगल ए के सामने वाला साइड हमारा हो गया 4, बेस इज 5, तो हाइपोटेन्यूज विल बी रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 41 हो जाएगा. तो यहाँ से फिर अब साइन ए की वैल्यू निकाल लोगे 4/41, 4/√41, और कॉस ए आ जाएगा 5/√41. अब वैल्यूज पुट कर दोगे. बट वो लंबा मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का. कर तो ऐसे भी सकते हो, बट जरूरत नहीं है ऐसे सॉल्व करने का, क्योंकि बिना वैल्यूज निकाले हमारा काम जब चल रहा है तो वैल्यूज निकालने की जरूरत क्या है. Isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते थे कि सिंस 5 sin a माइनस 4 cos a इज इक्वल टू 0, तो क्या हम कह सकते हैं कि 5 sin a माइनस 2 cos a क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 2 cos a. भाई माइनस 4 cos a 0 है, तो माइनस 2 cos a विल बी इक्वल टू 2 cos a, क्योंकि माइनस 4 cos a को लिख सकते हैं माइनस 2 cos a माइनस 2 cos a. तो बचा हुआ माइनस 2 cos a को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो 5 sin a माइनस 2 cos a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स cos a. सिमिलरली 5 sin a प्लस 4 cos a क्या होगा? दैट विल बी 5 sin a माइनस 4 cos a विच इज इक्वल टू 0, और 0 में ऐड कर दो प्लस 8 cos a. भाई ये पार्ट तो 0 है, सो दिस प्लस 8 cos a विल बी 5 sin a प्लस 4 cos a. सो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 8 cos a. तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है 2 cos a और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है 8 cos a. डिवाइड कर दोगे वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, सेम चीज है, बस देखने का तरीका अलग अलग है. सॉल्यूशन तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा. क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 6 थीटा प्लस sin टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा divided by cosec theta into sec theta into sin theta plus cos theta minus 1 into sin theta plus cos theta plus 1. Now this is a question जहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रहा है और साथ में एल्जेब्रा भी यूज हो रहा है प्रॉपर्ली. न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है? cos टू द पावर 6 थीटा प्लस sin टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. ओके, एंड इफ यू सी, एक टर्म आ रहा है sin स्क्वायर थीटा, एक टर्म आ रहा है cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टर्म क्या है? cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है और sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है. सो वी कैन राइट न्यूमरेटर एज cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस sin स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा. ओके, एंड इफ वी कंसिडर दिस एज a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab. तो a क्यूब तो दिख रहा है हमें, b क्यूब दिख रहा है, 3ab दिख रहा है, इंटू a स्क्वायर प्लस इंटू 3ab इंटू a प्लस बी. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. तो a प्लस बी वाला पार्ट मिसिंग है, बाकी तो सब कुछ दिख रहा है. सो अगर हम a प्लस बी भी मल्टीप्लाई कर दें साथ में, a प्लस बी क्या होगा? अब देखो टर्म तो इतना ही है, बट a प्लस बी वाला पार्ट मिसिंग है हमारा. और क्यों मिसिंग है? बिकॉज अल्टीमेटली a प्लस बी हमारा क्या आएगा? a प्लस बी विल बी इक्वल टू, बिकॉज a इज cos स्क्वायर थीटा, b इज sin स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1. दैट इज वाई अगर नहीं भी लिखा है तो लिख दो तुम, क्योंकि 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 मल्टीप्लाई करना है. तो 1 क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब वो लिखा हो तो चलेगा, और इसकी जगह 1 लिखा हो तो भी चलेगा, एक ही बात है. सो दैट इज वाई वो पार्ट मिसिंग था. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस न्यूमरेटर एज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1. सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1. न्यूमरेटर तो इक्वल टू 1 हो गया पूरा हमारा. अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की. डिनोमिनेटर में आ रहा है cosec थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1. अब फोकस ऑन दीज टू टर्म्स फर्स्ट. एक टर्म आ रहा है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, एंड सेकेंड टर्म आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1. यानी कि इफ दिस इज लेट अस से x, दिस इज y, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा
माइनस 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो दिस इज ऑल्सो 1 और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सो डिनोमिनेटर में बचने वाला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और दिस वैल्यू इज कॉसेक थीटा सेक थीटा विच इज कॉसेक इज 1 बाई साइन थीटा, सेक इज 1 बाई कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचेगा सिर्फ 2 और ये 2 बचा है डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। आंसर विल बी 1/2 ऑप्शन बी। क्या ये पार्ट क्लियर है? बट ये समझ में तभी आएगा जबकि तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, इस तरह के फॉर्मुलेज के साथ तुम कंफर्टेबल हो, तब तो इसको समझ पाओगे। Isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो द आंसर विल बी 1/2 इन दिस केस। ओके, सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चंस देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमेंट में जरूर मेंशन करना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया, कहीं पे कोई डाउट रहा है तो make sure to ask that doubt. And if you like the session then make sure to hit the like button as well and subscribe to the channel if you're liking the content. That is all. Bye bye, take care and keep learning.